Okay, so we start with the left shift and right shift operator. The left shift operator is saying what? So first we go to the right shift operator. Okay, right shift operator perform an arithmetic or signed of right shift. The result of the shift operator is the first operand is divided by 2 raised to the number of times specified in the second operand. इसका मतलब है अगर आप 256 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 4 लिखते हो, इसका मतलब क्या है 256 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4. 256 divided by 2 to the power 4, that gives you 16. If you give minus 256 right shift operator 4, that means minus 256 divided by 2 to the power 4. this is a right shift operator. राइट शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब क्या है? अगर आप लिखते हो 256 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 4, इट मींस 256 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4. देन अगर आप लिखते हो माइनस 256 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 4 माइनस 256 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4, मतलब यहाँ पर जो नंबर रहेगा वो डिविजिबल होगा बेस नंबर के साथ, डिविजिबल बाय 2 to the power of that number. तो अभी लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा ना, लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई होगा. अगर हम लिखेंगे 16 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2, दैट मींस 16 into 2 to the power 2. तो 16 into 2 to the power 2 is 16 into 4, that gives you 64. ओके, समझ में आया विश्वजीत, कितीश, प्रियंका? Yes, sir. Okay. So next I move to the another example. There is bitwise operator that we cover. Okay, so bitwise operator. Bitwise operator are used to perform the data at the bit level. To operate on the individual bits and their operand, we're using bitwise operator. I think we cover this. ये कवर हो गया था. ये मैं अभी पढ़ाऊंगा टेरेनरी ऑपरेटर. ये शायद कंप्लीट हो गया था. ये कंप्लीट हो गया था. शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ाएंगे सर. शिफ्ट ऑपरेटर बताइए, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट এটা बताइए. এটা হচ্ছে ternary operator. Ternary operator is used to evaluate an expression. So first of all, here you have to pass a condition. यहाँ पर आप एक कंडीशन पास करोगे. अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो आपका एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा. अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो आपका एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा. तो ternary operator is used to evaluate an expression. It work on the logical expression of the two operand. The syntax of ternary operator is what? First, you have to give a condition. यहाँ पर हम condition देंगे. अगर आपका condition true होता है तो expression 1 execute होगा. अगर आपका condition false होता है तो आपका expression 2 execute होगा. So it return one of the two operand depending upon the result of the expression. Okay, so I will show the example of ternary operator, how it is working. Just a minute.
Let's see this example. Here I pass a what data. Data type is double. Variable name is number. Value is minus 5.5. Then string result. Result equals to if your number is greater than 0.0. अगर आपका जो नंबर आप पास कर रहे हो अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ये आपको दिखाएगा क्या पॉजिटिव दिखाएगा अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो नॉट पॉजिटिव दिखाएगा तो आई रन दिस फाइल java c file name dot java for execution java daemon. So here it is showing you minus 5.5 is not a positive number. So now if I pass a positive value here, now it is showing you it is a positive number. That is your ternary operator. Now I show you another example how to create a package or how you have to divide your program into a smaller part. So for that, for packaging program, you require a ID, whether it is Eclipse ID or your NetBeans ID. So open the NetBeans ID first. It was fun.
So you write this program first. Open होने में time लग रहा है. You write it. Ternary operator example. Then in between time, let it open. Okay, if you complete, then let me know. Yes, sir. Complete. So I show you in another program, packaging program. See there. After NetBeans has opened, the first you write file, new project, then choose your Java, then Java application. Next. Then here you type your project name. Suppose project name is here. My package. So here you found the two part. My package. First part is your
First part is your folder name. Second part is your class name. First part is your folder name. Second part is your class name. So folder name, here I write P1 dot. Second part is the class name. Class name is first. P1 is a folder name. First is the class name, or you can say P1 is a package name. First is the class name. Then after typing this, choose your finish. So now I have class first. तो यहाँ पर जो मेन मेथड है उसको आपको हटा देना है. यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, एक फंक्शन में डिफाइन करूंगा. पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, and if I want to print anything, system dot out dot println. So I write here this is first class. देन आपका देखो यहाँ पर जो पैकेज हमने बनाया, तो सोर्स पैकेज में P1 यहाँ पर क्रिएट हो गया और उसके अंदर फर्स्ट क्लास है. तो फिर उसके बाद हम एक दूसरा पैकेज बनाएंगे. तो दूसरा पैकेज बनाने के लिए यहाँ पर जो पैकेज है, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक, न्यू जावा पैकेज. पैकेज का नाम हो गया P2, फिनिश, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास. क्लास का नाम हो गया सेकेंड. पैकेज हो गया P2, फिर राइट क्लिक, जावा न्यू क्लास सेकेंड. देन पब्लिक वॉइड, यहाँ पर डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको शो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा. यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println this is second class. Then again I am creating another package, right click, new, V3. Then ये दोनों पैकेज का वैल्यू हम कॉल करेंगे कहां पर ना, थर्ड क्लास में. तो न्यू जावा क्लास, जावा क्लास का नाम दे दिया थर्ड. थर्ड क्लास के अंदर हम कॉल करेंगे. तो कॉल करने के लिए यहाँ पर हम मेन मेथड डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. आप जितना भी प्रोग्राम बनाओ तो इसको कॉल करने की जरूरत है. तो जिस क्लास में आपको कॉल करना है उस क्लास में आपको मेन मेथड आपको डिफाइन करना है. तो क्लास थर्ड में सपोज P1 जो है वो सपोज हैदराबाद में है, P2 महाराष्ट्र में है, लेकिन आपका जो लोकेशन है वो कोलकाता में है. तो कोलकाता में जो टीम लीडर है वो उनको कॉल करेगा. कॉल करने के लिए पहले वो मेन मेथड बनाएगा. मेन मेथड के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा. फर्स्ट I इज इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट.
फर्स्ट आई इज इक्वल टू न्यू फर्स्ट। जब मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्लास है ये P3 पैकेज में नहीं है, ये एक दूसरा पैकेज में है। तो ये दूसरा पैकेज को कैसे कॉल होगा? तो जावा में दूसरा पैकेज को कॉल करने के लिए यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज किया जाता है। जैसे कि आपका हेडर फाइल सी प्रोग्राम में इंक्लूड यूज किया जाता था, यहाँ पर हम यूज करेंगे इंपोर्ट। तो इंपोर्ट P1 डॉट फर्स्ट, ये हो गया, देखो एरर चला गया। तो सिमिलर वे सेकेंड क्लास को कॉल करने के लिए इंपोर्ट P2 डॉट सेकेंड। सेकेंड j इज इक्वल्स टू न्यू सेकेंड। I'm creating the two object of class. So I dot, तो I ऑब्जेक्ट से मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो J ऑब्जेक्ट में यहाँ पर शो फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो अभी आप कौन सा फाइल को रन करना है? तो आपका फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है। तो जिस क्लास में आपका मेन मेथड होगा वही क्लास को आपको रन करना है। तो जो थर्ड क्लास में आपका मेन मेथड है, तो राइट क्लिक रन फाइल करने पर क्या होगा ना, सारा जो प्रोग्राम है जो फर्स्ट सेकेंड जो पैकेज में है वो सब यहाँ पर कॉल हो जाएगा। देखिए, तो योर आउटपुट दिस इज फर्स्ट क्लास, और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं दिस इज सेकेंड क्लास। दिस इज फर्स्ट क्लास एंड दिस इज सेकेंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जो फंक्शन है हम डिफाइन किए थे पैकेज P1 और P2 में। अंडरस्टूड? समझ में आया प्रोग्राम? विश्वजीत, प्रियंका, कितीश, सर जो फर्स्ट आई जो है, फर्स्ट जो लिखा हुआ है आई एंड जे जो आप लिखे हो वो क्यों यूज किए? वो है क्लास का ऑब्जेक्ट। मतलब क्लास में जो मेंबर्स है, मेंबर्स को कॉल करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये जो आई और जे जो हम डिफाइन किए हैं ये सब क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नेम पहले यूज किया जाता है, उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट का नेम। यू कैन गिव एनी नेम, ए आई जे कंपल्सरी नहीं है, आप कुछ भी नेम डाल सकते हो। इज इक्वल टू न्यू फर्स्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तभी उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के मदद से क्या होगा, आपका जो फंक्शन है, मतलब जो क्लास के अंदर जो मेंबर्स है वो फंक्शन भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, उसको हम कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के मदद से कॉल किए। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड क्लास में हम कुछ मेंबर वेरिएबल डिफाइन नहीं किए हैं, सिर्फ हम ऑब्जेक्ट डिफाइन किए थे। तो ऑब्जेक्ट के मदद से हम इसको कॉल किया, आई डॉट डिस्प्ले एंड आई जे डॉट शो फंक्शन। ओके सर विश्वजीत को इंपोर्ट दोबारा टी बोले। इंपोर्ट स्टेटमेंट बेसिकली हम यूज करते हैं अगर ये जो थर्ड क्लास में हम मेन मेथड बनाए, अगर मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट को कमेंट डालने से क्या होगा, देखो यहाँ पर एरर आ गया, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्लास है, ये जो पैकेज 3 मतलब P3 क्या है, एक पैकेज, एक घर है, इस घर के अंदर फर्स्ट क्लास नहीं है। वो कहाँ पर है, वो प्रेजेंट है पैकेज 1 में। तो इसलिए उसको कॉल करने के लिए हम इंपोर्ट यूज करेंगे। इंपोर्ट का मतलब है इंक्लूड, कोई दूसरा जगह से फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। यहाँ पर हो गया इंपोर्ट P1 डॉट स्टार्ट, इंपोर्ट P1 डॉट सेकेंड। तो ये इंपोर्ट करने से क्या होगा, तो उसका जो लाइब्रेरी, उसका जो फंक्शनैलिटी है, उसका जो मेंबर है, आप थर्ड क्लास में उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला P1 सपोज यूएसए में है, P2 अगर इंडोनेशिया में है, तो P3 जो है वो इंडिया में है। तो ये दोनों
जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका प्रोग्राम को मैं इंक्लूड करूंगा। तो इनको कॉल करने के लिए पहले मैं इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो फाइल को इंपोर्ट करने के बाद उसका जो फंक्शनैलिटी है मैं उसको कॉल करूंगा कैसे ना, वो जो पैकेज के अंदर जो क्लासेस है वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उस ऑब्जेक्ट की मदद से उसका फंक्शनैलिटी मैं कॉल कर सकता हूँ। ओके विश्वजीत बुझेला जी हाँ सर। प्रियंका यस सर। ओके ये वीडियो और एक मैं भेज दूंगा रात में, इसको अच्छी तरह से देखना है। अगर कोई डाउट रहेगा आप नेक्स्ट क्लास कल मुझे पूछना है उसको। ओके सेम टाइम में मैं कनेक्ट करूंगा कल।